या अ बिग हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स टुडे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई एम प्रमिला मुंद्रा, द होस्ट फॉर टुडेज डी लाइफ पॉडकास्ट सीरीज. I am a nutritionist with masters in food science and nutrition and a low carb diploma from D Life. For those new to this D Life podcast series, I would like to add that D Life is a vibrant community which advocates the principles of low carb and keto and helps many people with their health transformations. It's a wonderful platform for those suffering from diabetes, hypertension, PCOS, fatty liver, metabolic syndrome, and much more. We already have more than 250 successful stories of health transformations as a part of D Life community. It's also carrying an amazing resource of more than 1,200 low carb Indian recipes, which are very difficult to find in many of other sites. D Life was founded by Anup Singh, an engineer from IIT. Recently, he was awarded Icons of India Award by the Outlook Group for his pioneering work in low carb space. Also, I would like to add that anybody listening to the views of today's podcast, this is not a formal medical advice. For a personalized nutrition plan and to achieve your goals, we advise that you take the recommendation of a practicing or a registered low carb nutritionist or a doctor to achieve your personal health goals. Now, I would like to welcome the guest for today, Dr. Kishle. It's a great pleasure to welcome him back to D Life series because he was one of the participants in our metabolic health conference and his session was amazing and we could see his passion coming through regards nutrition and health. So, Dr. Kishle, welcome to the D Life podcast series today. Thank you. I would like to give a brief introduction of you before we get started. So, Dr. Kishle has been practicing a low carb keto approach for more than 5 years now. He's done his MBBS followed by 3 years of training in Tata Motors Hospital in Jamshedpur. In the last 5 years, he's been treating people with diabetes, hypertension, fatty liver, gout with his low carb dietary approach. His mainstay treatment, he believes what really works is combining fasting with low carb, hyper carnivore way of eating. He's actually popularly known as a hyper carnivore metabolic doctor. And if you follow him in his social media handles, Twitter, you can see that he personally has been following this for a very long time and his results. Dr. Kishle and me are here for the session to unpack most of the misinformation regards the nutrition and fitness space today. So welcome, Doctor, once again. Thank you, Pramila, for a wonderful introduction. Thank you so much. Yeah. तो अब हम शुरू करते अपने पहले सवाल से एंड ये सारे जो सवाल मैंने किए हैं कंपाइल, वो सारे इस तरीके के हैं कि जो हम देखते हैं लोगों को जो बड़े सिंसियरली फॉलो करते हैं बट शायद हमारी बॉडी के लिए वो सही है या नहीं है उन्हें खुद को भी नहीं पता होता है। तो उसमें से जो 8-10 जो मेन गलतियां होती है कभी कभी, तो उनको हमने डिस्कशन करके कंपाइल किया है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि खाने से पहले, हर मील के पहले एक बड़ा कटोरा सलाद जरूर लेना चाहिए भरपूर, ताकि उससे पेट भर जाए और वो लो कैलोरी खाना खाने में हमारे लिए काफी सेहतमंद होता है। तो आपका इस पर क्या विचार है? जी, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है लो कैलोरी लेने का, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि हम इतने ज्यादा हाइपर पैलेटेबल जंक फूड के एनवायरनमेंट में, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है हम कैलोरीज बहुत ले रहे हैं, एनर्जी शायद हम बहुत ले रहे हैं, इसलिए उसको कम करने की जरूरत है, देन हम ओबेसिटी को हम टैकल कर पाएंगे बेटर वे में। बट एक्चुअली ये बहुत सही नहीं है, क्योंकि जब हम बिग बोल ऑफ सैलड लेते हैं तो एक्चुअली हमारा स्टमक जो है वो फुल हो जाता है, मतलब फिजिकल वॉल्यूम वाइज वो स्पेस काफी लेता है जितने भी प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं, और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर गया,
बट क्योंकि न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ये सब, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, 2 से 3 घंटे बाद फिर भूख लगती है हमें, और उसकी वजह से फिर हम बिंज करने लगते हैं। तो उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए लगता है ऐसा जरूर कि हमारा पेट भर गया, अब हम कुछ नहीं खाएंगे, बट वो लॉन्ग टर्म, क्योंकि सैटिस्फैक्शन हमें उससे नहीं मिलती है, तो उस वजह से हमारा जो हंगर क्यूज है वो कंटिन्यूअसली बना रहता है पूरे दिन। और फिर हम क्रेव करते हैं, कुछ खाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि चलो उस समय तो नहीं खाए, कम खाए, लेकिन फिर पता चला फिर मिडनाइट में भूख लग गई, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर मील से पहले प्रोटीन और फैट नहीं लेने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम फाइबर से खुद के स्टमक को फिल कर रहे हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होती है उसकी वजह से। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे फाइबर लेंगे तो उससे मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होगी गट वॉल की, और उसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमारा पेट भर रहा है, तो अब खाना खाने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली परसिस्ट करता है, और वो हार्डली वो परसिस्ट करता है 2 to 3 आवर्स के लिए। उसके बाद फिर से हमें भूख लग जाती है। अगर हम वो नहीं करके, अगर हम फैट और प्रोटीन लेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे अपने मील में, तो क्या होगा कि हमारा बेसिकली स्टमक जो है वो उस तरह से डिस्टेंड नहीं होगा जिस तरह से फाइबर को लेने पे होता है, और वहां से जो सैटिस्फैक्शन आएगी हमें थोड़ा डिलेड आएगा, तुरंत नहीं आता है। जैसे हम प्रोटीन और फैट खाते हैं ना, तो हमें तुरंत सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। हमें उस समय ऐसा लगता है कि हम खा रहे हैं, नॉरिशिंग है काफी ज्यादा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत है, और ग्रेजुअली हमें सैटिस्फैक्शन मिलती है। और 3 से 4 घंटे बाद वो एक्चुअली ऐसा लगता है कि अब तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, भूख तो लगी नहीं रही है। तो वो जो हम करते हैं सैटिस्फैक्शन, वो थोड़ा डिलेड आता है उसका, क्योंकि उस तरह से स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है गट की, तो इंस्टेंट सिग्नल नहीं जाता ब्रेन को उस समय। लेकिन न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली वो ड्राइव करता है आपके सैटिस्फैक्शन को, और उस न्यूट्रिएंट से जो आपके हॉर्मोन्स को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो स्पेशली हंगर हार्मोन, सैटिस्फैक्शन हार्मोन, हंगर हार्मोन को काफी ड्रॉप करता है और सैटिस्फैक्शन हार्मोन को काफी बढ़ाता है वो। तो इस वजह से आपका क्या है कि वो प्रॉपर सैटिस्फैक्शन सिग्नलिंग हमें मिलती है, और वो परसिस्ट करता है 10 to 12 आवर्स के अराउंड। तो यही प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि हम फाइबर से पहले फिल कर लेते हैं। फाइबर उतना अगर लेंगे तो डेफिनेटली हम फिर प्रोटीन और फैट्स नहीं प्रायोरिटाइज कर पाएंगे अपने मील में, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे ओवरऑल मील के। तो ये बहुत गलत आइडिया है। अगर आप सोचते हैं कि हमें लेज खाना है मील में, अगर हमें बिस्किट्स खाना है, देन डेफिनेटली उस पर्सपेक्टिव में हमें सैलड खाना थोड़ा बेहतर हम मान सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा न्यूट्रिशन उससे हमारा फुलफिल नहीं हो सकता कभी भी। तो पूरी तरह से मतलब ये रॉन्ग है बेसिकली। तो क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है, हाइपर पैलेटेबल फूड का एनवायरनमेंट है, तो उस पर्सपेक्टिव में हम सोचते हैं कि चलो सैलड खा लेते हैं तो थोड़ा काफी हेल्दी है और न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है उससे भी। तो थोड़ी देर का सैटिस्फैक्शन है, और ओवरऑल कैलोरी आप डेफिनेटली उससे रिड्यूस कर पाएंगे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। फिर आप विशियस साइकिल में ही फंसेंगे, फिर आपको क्रेविंग होगी, भूख लगेगी, और देन आप फिर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। तो तो आपका ये कार्बोहाइड्रेट, मानना, सॉरी, हाँ, तो आपका ये तो मानना है कि सलाद के साथ हम प्रोटीन और फैट भी जरूर इंक्लूड करें ताकि उससे हमें सताइटी मिले? नहीं, मेरे हिसाब से सैलड अगर हम खा रहे हैं तो प्रोटीन और फैट उसके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइबर इतना ज्यादा इंटरफेयर करता है न्यूट्रिएंट्स के हम्म। एब्जॉर्प्शन को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छी चीजों के भी बेनिफिट को आप कहीं ना कहीं निगेट कर रहे हैं फाइबर लेकर के। तो अगर प्रोटीन और फैट है डाइट में, तो मुझे नहीं लगता फाइबर की जरूरत है। थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ अमाउंट में आप सैलड ले सकते हैं, लेकिन बल्क ऑफ सैलड नहीं होना चाहिए आपके साथ प्रोटीन और फैट वाली मील में, स्पेशली अगर एनिमल फूड आप ले रहे हैं, क्योंकि एनिमल फूड खुद में ही बहुत बायो अवेलेबल है। तो उसके न्यूट्रिशन को आप एनहांस नहीं कर सकते फाइबर को ऐड करके, आप कहीं ना कहीं डिक्रीज ही करेंगे आप उसके एब्जॉर्प्शन को। ये बहुत सही पॉइंट आपने हाईलाइट किया, क्योंकि काफी लोग अभी भी ये मानते हैं कि फाइबर ज्यादा मात्रा में अच्छा रहता है क्योंकि उससे भूख कम लगती है और जैसे आपने कहा पेट एक बार के लिए भर जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि प्रोटीन और फैट को हम पहले प्रायोरिटाइज करें, उसके बाद में हल्का सैलड ले तो वो बेहतर रहेगा। और जी हाँ, और सैलेड के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि क्योंकि हाइपर पैलेटेबल रिफाइंड फूड्स बहुत ज्यादा है हमारे आसपास, तो फाइबर कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड कर रहा है कि एटलीस्ट गट के लेवल पे तो थोड़ा बहुत वो कीटोन बॉडीज प्रोवाइड कर रहा होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड के प्रोडक्शन के थ्रू। हम्म। तो क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली ग्लूकोसेंट्रिक है, मतलब ग्लूकोज इतना ज्यादा है हमारी डाइट में, तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट जो गट को मिलते हैं ग्लूकोज से इतने ज्यादा स्पाइक्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं आप रिपेयर वर्क करते हैं फाइबर के थ्रू, जो आपको शॉर्ट चेन फैटी एसिड मिल रहा है, एंड देन शॉर्ट चेन फैटी एसिड फाइनली बेसिकली वो कीटोन्स में कन्वर्ट होता है, जिससे गट को थोड़ा सा रिपेयर होता है और सेल्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं कोलोन के, मतलब जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के सेल्स हैं।
तो इस पर्सपेक्टिव में फाइबर का थोड़ा बहुत रोल मैं मान सकता हूँ, बट इनहेरेंटली फाइबर बहुत कुछ ऐसा कुछ मैजिकल नहीं है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आई मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा माना हुआ एक ट्रूथ है, चाहे आप उसको बोले मिस इन्फॉर्मेशन, की फाइबर बहुत बहुत जरूरी है। और लोग बहुत अलग तरीके ढूंढते हैं वेजिटेबल्स के अलावा भी फाइबर को लेने के लिए, और उससे गट रिसेप्शन बहुत होता है। लेकिन कभी कोई सोचता नहीं कि शायद वो फाइबर से हो। लोग प्रोटीन कम कर लेते हैं, फैट कम कर लेते हैं कि शायद उससे गड़बड़ हो रही है। अब हम्म। मेरा अगला सवाल ये है कि बटर और घी लोग खाते हैं, लेकिन आजकल लोगों में काफी एक बड़ा फियर और डर बैठ गया है कि ज्यादा घी और बटर लेंगे तो मोटापा ज्यादा हो जाएगा, प्लस हृदय रोग या हार्ट डिसीजेस जो हैं उससे बढ़ेगी। तो आपका इस पे क्या विचार है? जी, ये जो कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड फैट का, कि सैचुरेटेड फैट हार्ट डिजीज कराता है या डायबिटीज कराता है या इन्फ्लेमेशन कराता है, ये एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट हमेशा मैटर करता है। जब भी हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं ना, तो हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और ये कॉन्टेक्स्ट हमेशा कार्बोहाइड्रेट होता है बैकग्राउंड में, तभी हम ब्लेम कर रहे होते हैं सैचुरेटेड फैट को। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जहाँ पे सिर्फ सैचुरेटेड फैट और प्रोटीन सेंट्रिक स्टडी है, जहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट को टोटली इग्नोर किए हुए हैं, वहाँ पे है ही नहीं वो। और देन हम स्टडी बता ऐसी स्टडी डिजाइन रखते हैं, और देन हम बताते हैं, इन्फ्रेंस में ऐसा लाते हैं कि भाई सैचुरेटेड फैट इज बैड। तो जब भी ऐसा सैचुरेटेड फैट के बारे में ऐसा क्लेम किया गया है, देन क्योंकि वो डाइट में ऑलरेडी 40% 50% भी रहता ही है डाइट में, तो एंटायरली हम ब्लेम नहीं कर सकते इसलिए सैचुरेटेड फैट को। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये मिक्सिंग से हो रही है, जैसा मैं हमेशा ही बताता हूँ इस चीज को, कि प्रॉब्लम हमेशा मिक्सिंग से होती है। सिर्फ फैट से नहीं होता, और इवन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं होता उतना प्रॉब्लम जितना हम मानते हैं। तो प्रॉब्लम हमेशा दोनों की मिक्सिंग से होती है, क्योंकि डाइट में हम प्योरली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट नहीं लेते हैं। डाइट में कहीं ना कहीं फैट आ ही जाता है, और मोस्टली क्योंकि रिफाइंड ऑयल होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, प्लांट बेस्ड वो भी। तो उस वजह से क्या होता है, ये मिक्सिंग हो ही रही होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट की। और मोस्टली ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन उस दोनों के मिक्सिंग से ही होता है। अगर सिर्फ हम कार्ब्स भी खाएंगे, देन हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना हम क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज के बर्डन से हम अभी मतलब फेस कर रहे हैं, जितना ज्यादा बर्डन है हमारा। तो ये प्रॉपर, क्योंकि ये मिक्सिंग हो रही है, और वो हम कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर रहे हैं, मतलब हम एड्रेस नहीं कर पा रहे कि ये मिक्सिंग कहाँ हो रही है। तो घर में भी पूरी पराठे बहुत कॉमन है, मतलब हर लोग खाते हैं, वहां पे आटे का कार्बोहाइड्रेट हो गया, और आपका फैट जिसमें हम तल रहे हैं उसको फ्राई कर रहे हैं, या फिर घी यूज करें या फिर रिफाइन ऑयल यूज करें, फैट तो है ही। तो प्रॉब्लम हमेशा उस फैट का नहीं है, उस सैचुरेटेड फैट का नहीं है, या फिर उस रिफाइन ऑयल का नहीं है। रिफाइन ऑयल तो अपने आप में टॉक्सिक है ही बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि वो कार्ब्स के साथ हम मोस्टली खाते हैं उसको, हम्म। रिफाइन ऑयल ऐसे कोई तो पीता नहीं है बैठ करके, हम्म। तो वो जा करके तब जा करके ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसलिए इनहेरेंटली सैचुरेटेड फैट बैड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट को मैं टू सम एक्सटेंट मान सकता हूँ बैड। और इनहेरेंटली आपका सैचुरेटेड ये सॉरी पॉली अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा बैड है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली जिस फॉर्म में हम ले रहे हैं, जो ऑयल के फॉर्म में ले रहे हैं, जो मार्केट में बॉटल के फॉर्म में जो हमें आ रहा है डायरेक्टली। अगर हम नट्स खा रहे हैं, तो क्योंकि वो फ्रेश नट्स अगर है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं है, देन हम उसे कहीं ना कहीं उतना ज्यादा डैमेजिंग नहीं मानते हैं, या नहीं मान सकते हैं। तो ये जो सैचुरेटेड फैट का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सैचुरेटेड फैट हम खाएंगे और हार्ट डिजीज होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा रिसर्च नहीं है, कोई स्टडी नहीं है जो इस चीज को प्रूव करती है कि सैचुरेटेड फैट इज बैड। वो हमेशा मिक्सचर में होता है सब कुछ, डाइट में सब कुछ है, और देन हम कंक्लूड कर देते हैं, इन्फ्रेंस में हम लिख देते हैं कि सैचुरेटेड फैट इज एसोसिएटेड विद। तो प्रॉब्लम क्या है कि एसोसिएशन होना और कॉज वो एस्टेब्लिश करना, दोनों में फर्क होता है। तो एसोसिएटेड बहुत कुछ बहुत सारी चीजों से हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली वो चीज करा रहा है उस डिजीज को, इस चीज को कोई प्रूव नहीं कर सकता, वैसी स्टडी हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा मिथ्स है एक्चुअली, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है 70 to 80 डेकेड से लगभग ये चला आ रहा है, और ये सब लोग जानते हैं कि ये मिथ्स कहाँ से आया है। तो इस पे बहुत ज्यादा हम डिटेल में बात करेंगे नहीं। हम्म। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप घी और बटर और इवन सैचुरेटेड फैट का, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई अपर लिमिट नहीं होता है इन चीजों का कि कितना खाना चाहिए। आपकी डाइट अगर ओवरऑल बहुत है, अगर आपका रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन का, ये सॉरी एनर्जी वाइज आपका रिक्वायरमेंट बहुत है, क्योंकि आप एथलीट हैं या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक ठाक वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है क्योंकि ओवरऑल बहुत ज्यादा है, देन आपका सैचुरेटेड फैट इनटेक आपके लिए ज्यादा होगा।
और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटीन इंटेक जाएगा आपका साथ साथ। तो प्रोटीन और फैट का इंटेक जो होता है वो ऑलमोस्ट हैंड इन हैंड बढ़ता है दोनों का, मतलब एक्टिविटी लेवल के डिपेंड करेगा वो उस पे। तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। तो जब कोई साइंस ही नहीं है जो इसको प्रूव कर रही है कि सैचुरेटेड फैट हार्ट डिजीज कराता है, देन हम इसको बिलीव ही क्यों करें? क्योंकि हम खाते ही आए हैं सैचुरेटेड फैट, ये तो था भी नहीं हमारे पास पहले पॉलीअनसैचुरेटेड फैट या ऑयल जितने भी हम लोग अभी देख पा रहे हैं मार्केट में। हम्म। तो बिल्कुल ऐसा कुछ होता नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। और ओबेसिटी जो हो रही है वो बेसिकली दोनों की मिक्सिंग से ही हो रही है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट भी आप खाएंगे तो आप फैट को लूज कर पाएंगे, अपनी बॉडी फैट को। और क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है, कोई सिर्फ चावल या दाल नहीं खा रहा है, कहीं ना कहीं वो पूरी पराठे ये सब खाते ही हैं डाइट में। अगर सिर्फ चावल दाल पे भी लोग उतर जाएंगे तो वो फैट लूज करेंगे। और इसलिए भी लोग राइस को प्रमोट करते हैं वेट गेन वेट लॉस प्लान पे, बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, या आपको सीरियल्स बंद करना होता है। सब लोग ये सब डराते हैं, कीटो वाले लोग जितने भी हैं, तो ये सब डराते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि चावल खाते हुए भी आप वेट लूज कर सकते हैं, वो यहाँ से आ रहा है कि आपको फैट कहीं ना कहीं दोनों के साथ मिक्स नहीं करना है, कार्ब्स के साथ। तभी आप उसको चावल खाते हुए भी आप वेट लूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो आइडियल नहीं है न्यूट्रिशन हमारे लिए चावल खाना, तो हम उसे क्यों हम प्रमोट करें या फिर बताएं कि आप चावल खाते हुए वेट लूज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है राइस में। तो आपको न्यूट्रिशन को साथ साथ देखते हुए आपको वेट लॉस को ध्यान में रखना है। वेट लॉस तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। मतलब राइट। हम खाना ही छोड़ दें बिल्कुल भी, एक हफ्ते में बहुत सारा वेट निकल जाएगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम उसको उस पर हम थ्राइव नहीं कर सकते हैं उस तरह से कि सिर्फ अगर कार्ब्स खा रहे हैं या सिर्फ फाइबर खा रहे हैं पूरे दिन, हम्म। या वीक डेज में 5 डेज कुछ लोग फाइबर्स खाते हैं, 2 दिन ही कुछ कुछ खाते हैं। तो बहुत तरीके का प्लान होता है डाइट करने का, डाइटिंग करने का। ये डाइटिंग प्लान नहीं है। हम लोग जितने भी लो कार्ब वाले जो भी एडवोकेट हैं, वो लोग हम लोग डाइटिंग नहीं कराते हैं। हम लोग कहते हैं कि आप अपने हंगर को कैसे कंट्रोल करते हो प्रोटीन और फैट बेस्ड मील पे, और अल्टीमेटली वही आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बनता है, वही सस्टेनेबल भी होता है मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये निचोड़ है कि हमें भूखे रह के या कम खा के वेट लूज नहीं करना है। बिल्कुल। हमें पूरा पौष्टिक खाना जो एक शरीर को हमारे चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को देते हुए भी हम वेट लूज कर सकते हैं। डेफिनेटली। और ये चीज बहुत लोग समझते नहीं है कि ओबेसिटी होती ही है न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी के स्टेट में। अगर आप न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होंगे, देन आप ज्यादा एनर्जी खाएंगे, आपकी ब्रेन क्रेव करती है उस एनर्जी को, और देन आप खाते हैं ज्यादा। अगर आपके पास न्यूट्रिएंट सफिशिएंट होगा, देन डेफिनेटली रिक्वायरमेंट जो है ओवरऑल एनर्जी का फूड के फॉर्म में वो कम हो जाएगा। तो आप खा ही रहे हैं क्योंकि आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। और राइस में, प्लांट बेस्ड फूड्स में, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको मिल नहीं रहा होता है, बॉडी एक्सेस नहीं कर पाती उस न्यूट्रिएंट्स को। प्लांट्स का न्यूट्रिएंट सब कुछ प्लांट्स के लिए होता है, वो हमारे लिए नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम बॉडी में डाल लिए उसको, इसका ये मतलब नहीं हमें मिल गया वो। हम्म। तो उस वजह से क्या है कि आप कांस्टेंट हंगर में रहते हैं और आप खाते ही हैं, क्रेव करते रहते हैं और उस साइकिल में फंसे होते हैं। राइट, तो हमें इस तरह का खाना खाना बहुत जरूरी है जो पौष्टिक हो, और हमारे को सटाइटी या एक फीलिंग जो कि हाँ हमारा पेट भर गया है और हमें वापस 2 घंटे में भूख ना लगे, इस तरह का प्लान करना है, जो जिसमें कि लो बिल्कुल। कार्ब अप्रोच काफी अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। डॉक्टर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जो कि काफी प्रचलित है आजकल और बहुत मशहूर है, बैलेंस डाइट कॉन्सेप्ट का, जिसको हम संतुलित आहार कहते हैं। तो अगर हम इंडियन थाली लें तो संतुलित आहार का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 2-3 रोटी या राइस, उसके साथ एक करी या दाल, थोड़ा सा सैलड, पापड़। जनरली दाल नहीं तो थोड़ा दही होगा। तो बेसिकली हम ये देखते हैं, बट मुझे उसमें लगता है कि 60 से 70% फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का रहता है, रोटी या चावल, पूड़ी, पराठा के फॉर्म में। तो ये संतुलित आहार का जो कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस डाइट खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी को ऑप्टिमल हेल्थ या सही सेहतमंद हम रह सकते हैं, तो क्या ये सही विचार है? इस पे आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है जितने भी डिजीज हैं, जो भी हम क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज से जितने हम सफर कर रहे हैं, हम सारे ह्यूमन पॉपुलेशन के लेवल पे, वो सारा इस बैलेंस डाइट से ही आ रहा है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये कहीं से भी हेल्दी नहीं है। पता नहीं इसको हेल्दी प्रमोट करते हैं शायद फूड इंडस्ट्री वाले लोग ही, केलॉग्स लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, और कहते हैं कि ओट्स लो, ओट्स खाओ, ये खाओ। कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि हमें कार्बोहाइड्रेट इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि उनकी जो फूड आइटम्स हैं वो सारे मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ही होते हैं। और उस चीज को हम देखते हैं ध्यान में रखते हुए, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स करके मार्केटिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग हमारी डाइट में कार्ब्स को एसेंशियल बनाए हैं जबरदस्ती। वो हम्म। है नहीं, बस वो बताया गया है कि
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको खाना है, कार्ब्स खाना है, ब्रेन का फूड है वो। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं मान लिए हैं कि हाँ भाई, कार्ब्स भी हमारे लिए एक मैक्रोज है और जो हमें डाइट में लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि फैट और प्रोटीन ही है जो हमें बॉडी को चाहिए होता है डाइट के थ्रू। कार्ब्स अगर चाहिए भी तो वो बॉडी बना ले रही है फैट से, प्रोटीन से, और जितना रिक्वायरमेंट होता है उतनी बॉडी बना लेती है। उसके लिए कुछ है नहीं। अगर हमें 120 ग्राम भी चाहिए होगा शुगर पूरे दिन भर में ग्लूकोज, तो वो बॉडी बना लेगी, हमारा लिवर बना लेगा। 150 चाहिए होगा, वो भी बन जाएगा। तो वो हमारा इश्यू है ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखना ही नहीं होता है कि हमारी डाइट में कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए। अगर हम डेफिनेटली कार्ब्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड होगा, क्योंकि जितने भी हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को प्रमोट करते हैं, होल ग्रेन्स खाता कोई नहीं है, वो बस बोलने की चीज है कि होल ग्रेन्स। बैठ करके गेहूं कोई नहीं खा रहा होता है घर में। हर लोग मतलब उसका पिसा हुआ एक आटा ही खा रहे हैं। तो होल ग्रेन्स का कॉन्सेप्ट बस थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकल वे में हम कभी भी होल ग्रेन्स खा नहीं रहे होते हैं। तो सारा रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं, और क्योंकि रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उसके साथ क्योंकि थोड़ा फाइबर चाहिए होगा, क्योंकि रिफाइंड कार्ब्स एक्चुअली इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है, ग्लूकोज इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है हमारे गट के लिए। तो कहीं ना कहीं जब तक हम फाइबर नहीं लेंगे, हमारे पास वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड डेवलप नहीं होगा गट में। फर्मेंटेशन के मतलब कारण, जो भी फर्मेंटेशन हमारा बैक्टीरिया कर रहा है उस पे, उस फाइबर पे, तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड अगर बनेगा नहीं, तो फिर कीटोन नहीं बनेगा, जो हमारे गट के लाइनिंग को बेसिकली रिपेयर करता है। तो वो कॉन्सेप्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कार्ब्स को लिए, अब आप कार्ब्स को लिए हैं तो आप फाइबर को भी लेंगे, और प्रोटीन फैट लेना है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है मेंटेन, लीन प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए आपको 15% प्रोटीन चाहिए, जैसा हमें बताया जाता है। और 15% के अराउंड ही हमारा फैट भी होता है, लेकिन हम कहीं 15% नहीं ले रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। ये 15 से कहीं ज्यादा जा रहा है, इसलिए ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का पार्ट बनता है और ओबेसिटी होती है हमें। तो ये पूरा जो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरी तरह से फॉल्स है, मतलब पूरी तरह से फॉल्स है, कहीं से भी कोई साइंटिफिक नहीं है। तो आपके हिसाब से जो अभी इंडियन थाली है एग्जिस्टिंग, उसमें एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर एक दो चेंजेस लाने हैं एक अच्छे सेहत की तरफ जाने के लिए, तो उसमें आप क्या चेंज उनको रेकमेंड करेंगे? मेरी तरफ से चेंज यही होगा कि जो बैलेंस डाइट आप सोच करके कार्ब्स खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, फैट खा रहे हो, फाइबर खा रहे हो, ऐसा मत करो। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप डाल रहे हो सब कुछ अपनी बॉडी के अंदर थाली के थ्रू, पर आपकी बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है उस तरह से। क्योंकि जब आप कार्ब्स को लेते हो, फैट को लेते हो ना, तो आप दो मेटाबॉलिक पाथवे को एक्टिवेट कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर। कार्ब्स का अपना एक जो मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी विटामिन बी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, जितने भी कार्ब्स डोमिनेंट जो भी फूड होते हैं। तो उसके लिए विटामिन B1 हमें ज्यादा चाहिए होता है, और भी जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, B2 B3 सारा कुछ। तो आप साथ साथ क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर विटामिन का भी रिक्वायरमेंट को आप बढ़ा रहे हो, कार्ब्स को ले रहे हो तो। क्योंकि कार्ब्स को मेटाबोलाइज होने के लिए वो सारे विटामिन और उसके साथ साथ को फैक्टर्स भी होने चाहिए, जो मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो उसके भी रिक्वायरमेंट को आप डाइट में कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हो। तो आप अगर कार्ब्स नहीं लोगे, तो आपका रिक्वायरमेंट इवन पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, वो काफी डाउन हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। देन आपको एक्स्ट्रा मतलब एक्सोजेनस वे में आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सारे न्यूट्रिएंट्स को। तो आप अल्टीमेटली सारा कुछ ले रहे हो, बहुत ले रहे हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सप्लीमेंट लेने की आपको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आप खुद ही में इंटरफेयर कर रहे हो सब कुछ लेते हुए। तो आप बैलेंस डाइट मत लो, बैलेंस न्यूट्रिशन लो। और बैलेंस न्यूट्रिशन सिर्फ एनिमल फूड से ही होता है पॉसिबल ह्यूमंस के लिए। तो आप प्रोटीन लो, फैट लो, वही बैलेंस्ड है न्यूट्रिशनली, और वही हमारे लिए बैलेंस डाइट है। तो टिपिकल जो हम जिसको बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो बैलेंस हमारे लिए नहीं है, न्यूट्रिशन वाइज बैलेंस नहीं है वो कहने के लिए बस बैलेंस्ड है। ये क्योंकि आपने थाली में बहुत 4 अच्छी घर हम बना दिए हैं, ये थाली में बहुत हम अच्छी 4 घर बात बना कही दिए हैं। आपने जी, कि बैलेंस डाइट नहीं लो, बैलेंस न्यूट्रिशन लो। एग्जैक्टली। बहुत आई होप जो भी व्यूअर्स हैं उनमें ये क्लैरिटी बहुत आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रचलित कंसेप्ट है इंडिया में बैलेंस फूड का। तो आई होप जो भी देख रहे हैं उसमें ये एक क्लैरिटी आ रही है कि हमें जो न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए, चाहे विटामिन, मिनरल्स, मैक्रोस के तौर पर है, जिससे कि पोषण हो रहा है रियल में शरीर के लिए, उस पे हम ज्यादा ध्यान दें।
एग्जैक्टली और ये मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहीं पे, क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में मैं बताया कैसे आप न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को आप बढ़ाते हो अपने गलत डाइट को लेते हुए। करेक्ट। हम्म। तो इन जनरल हम ऐसा मानते हैं विटामिन सी का रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में 70 to 80 मिलीग्राम है ऑन एन एवरेज। हम्म। तो हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम 70 to 80 मिलीग्राम हम लेंगे विटामिन सी, हम्म। देन हमें स्कर्वी नहीं होगा। तो हम बेसिकली प्रिवेंट कर रहे हैं स्कर्वी को होने से। हम्म। पर मैं देखा हूँ क्लिनिकली अपने साथ, जब मैं डीएनबी कर रहा था मेडिसिन में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज्यादा हाइपर मतलब पैलेटेबल फूड्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत हाँ। खाते हैं वो, चिप्स वगैरह। और उनके मतलब उस बच्चे के नाक से ब्लीडिंग हो रहा था। तो ईएनटी में वो बच्चा गया दिखलवाने को, तो डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। एपिस्टैक्सिस बोलते हैं उसे, नोज ब्लीडिंग को। हम्म। तो वो मेरे एक्चुअली पड़ोसी थे। तो मैंने बताया उनके पेरेंट्स को, उस बच्चे के पेरेंट्स को, कि आप एक काम करिए, इसको आप लेमन दीजिए। हम्म। और क्योंकि डाइट में पूछ लिया था, मैंने अच्छा। पूछा था, तो मैंने बोला कि आप एक काम करिए, आप लेमन दीजिए बच्चे को, और मुझे ऐसा लगता है इसकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। और उन्होंने वैसा ही किया, क्योंकि ईएनटी वाले समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है नोज ब्लीडिंग। हम्म। और उसका नोज ब्लीडिंग बंद हो गया उसके बाद। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप विटामिन सी इवन दो आप ले भी रहे हो अगर 70 to 80 मिलीग्राम, क्योंकि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, स्पेशली रिफाइंड फूड, तो हम्म। उसके साथ साथ विटामिन सी का रिक्वायरमेंट फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कार्ब्स बहुत ज्यादा ले रहे हो। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि आप 70 मिलीग्राम जब विटामिन सी खा रहे होगे तो आपको स्कर्वी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। तो हो सकता है आपके लिए 150 मिलीग्राम चाहिए होगा, क्योंकि आप कार्ब्स बहुत ज्यादा ले रहे हो। हम्म। तो इस तरह से आप अपने हेल्थ को खराब करते हो गलत चीज को डाल करके, फिर सही चीज के रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बढ़ इवन जाए। आपको विटामिन सी भी चाहिए तो अब ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपके पास कार्ब्स भी ज्यादा है। और हम्म। क्योंकि बॉडी में जब भी ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा ब्लड में, तो हम्म। विटामिन सी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। जैसे डायबिटिक्स को हम्म। विटामिन सी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, इसलिए डायबिटिक्स वालों का ब्लड वेसल्स भी बहुत वीक होता है, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन का सिंथेसिस फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि हम्म। विटामिन सी की कमी जब होने लगती है तो। हाँ। क्योंकि दोनों कॉम्पीट करते हैं सेल्यूलर लेवल पे अपटेक होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए। अगर आपके पास ब्लड में कंटिन्यूसली ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो आपके पास विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा ब्लड में, तभी जाकर के विटामिन सी को सेल यूज कर पाएगा। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हम बोलते हैं, कि दोनों एक दूसरे मॉलिक्यूल को कॉम्पीट मतलब कर रहे हैं एब्जॉर्ब होने के लिए, सेम हम्म। टारगेट को अचीव करने के लिए। हम्म। ये चीज है। सो आई थिंक बेसिकली ये है कि ग्लूकोज का की जो मात्रा जैसे ही बॉडी में ज्यादा हो जाती है, तो बाकी न्यूट्रिएंट्स के एब्सॉर्प्शन पे बहुत असर पड़ता है और उसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो सिर्फ शक्कर और गुड़ नहीं, बट जो भी चीजें जो आपने बोला कार्ब्स, जिसका फाइनल बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज होगा, उसे भी हमें कम करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम रिप्लेस कर लें मिलेट से, राइस से या होल ग्रेन रोटी से, बट उन सब चीजों का भी बाई प्रोडक्ट एक्चुअली ग्लूकोज ही होता है। तो इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, अब मैं अगला सवाल करूंगी प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन सबसे ज्यादा डिबेटेड और सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है न्यूट्रिशन में। हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारी शरीर के लिए बेहदमंद जरूरी है, लेकिन आजकल ये डर भी फैल रहा है कि प्रोटीन ज्यादा लेने से किडनी इफेक्ट होती है या हमारा किडनी फंक्शन पे बहुत असर पड़ता है। तो एक क्लैरिटी एक नॉर्मल व्यक्ति को चाहिए कि कितना प्रोटीन उसके लिए सही रहता है, और प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन से सोर्स से या कौन से तरीके से, कि आजकल प्लांट बेस्ड है, एनिमल सोर्स है, वे प्रोटीन पाउडर से, कौन सा तरीका सही रहता है। जी, तो पहले किस क्वेश्चन को डील किया जाए, किस जी पार्ट पे सॉरी, आपको? हाँ मैंने दो हाँ। क्वेश्चन पूछे। तो पहला जी। क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन ज्यादा लेने से किडनी पे बुरा असर पड़ता है या नहीं। हाँ, तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। प्रोटीन की जहां तक बात है ज्यादा लेने से, मुझे ऐसा लगता है जितने भी किडनी डिजीज हम देख रहे हैं अभी डे टू हम्म। डे लाइफ में, प्रैक्टिस में, क्लिनिकली, वो मैक्सिमम पेशेंट्स प्रोटीन ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं। कोई भी पेशेंट जो किडनी के सफरर हैं, किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, हम्म। किसी का भी प्रोटीन इंटेक ज्यादा नहीं है। हम्म। ज्यादा मीन्स आई मीन 1 से भी ज्यादा नहीं है, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से भी ज्यादा नहीं है। हम्म। और फिर भी उनकी किडनी जो है डैमेज हो चुके हैं। तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं
डायबिटीज का एक एनवायरनमेंट रहता है उनके, तभी किडनी पकड़ता है, या फिर हाइपरटेंशन। बेसिकली यही दोनों डिजीज है जो किडनी को इफेक्ट करता है नेगेटिवली। तो इनका उस समय जो डाइट होता है, मोस्टली जिस समय ये डिजीज को डेवलप कर रहे होते हैं, या फिर तो सालों से, डाइट बेसिकली इनका बैकग्राउंड में क्या है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो प्रोटीन डाइट, इवन मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट। तो आपका जो किडनी डैमेज हुआ वो प्रोटीन से डैमेज हुआ नहीं, यहाँ पे तो लो प्रोटीन था आपकी डाइट में। तो अब ये सोचते हैं लोग कि अब हम हाई प्रोटीन नहीं ले सकते क्योंकि हमारा किडनी ऑलरेडी डैमेज हो गया है, तो अब हम प्रोटीन नहीं ले सकते। और इवन अगर हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम देखते हैं प्रोटीन लूज करते हैं इनिशियली हम, क्रिएटिनिन तो हमारा बाद में बढ़ता है। इनिशियली जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी जब डायग्नोज होता है तो उसमें प्रोटीन हम लूज करते हैं, प्रोटीन यूरिया होता है, और वहां पे प्रोटीन हम ग्राम्स में लूज करते हैं। इनिशियली वो मिलीग्राम से स्टार्ट होगा, 100 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, देन वो ग्राम्स में प्रोग्रेस करने लगता है। और तब जाकर के हमारा फिल्ट्रेशन जो है कॉम्प्रोमाइज होता है, देन क्रिएटिनिन राइज होता है। तो जो क्रिएटिनिन है ना, ये तो समझिए काफी एडवांस स्टेज हो गया आपका किडनी डिजीज का, देन जाकर के क्रिएटिनिन बढ़ा है। इनिशियल फेज में हमें प्रोटीन यूरिया वाला फेज मिलता है, और वहां पे प्रोटीन हम लूज करते हैं, देन हमें डॉक्टर फिर डरा देता है कि प्रोटीन नहीं खाना है। तो प्रोटीन लूज कर रहे हैं तब तो प्रोटीन आपको खाना पड़ेगा ना, आप तो लूज कर रहे हैं किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो एटलीस्ट आप डाइट में प्रोटीन लें ताकि आप लीन बॉडी टिश्यू को लूज ना करें। तो वहां पे भी लो प्रोटीन डाइट हो जाता है उनका, और साथ में जो डैमेज हुआ है वो हाई कार्बोहाइड्रेट से, फैट से हुआ है, दोनों की मिक्सिंग से हुआ है। तो उस चक्कर में आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से मसल लूज करने लगती है। और डायबिटिक पेशेंट इसलिए अपने बॉडी को बहुत तेजी से, मतलब रैपिडली वो डिटोरिएट करते हैं अपनी बॉडी को, मसल टिश्यू उनका लूज होता है, फैट टिश्यू भी लॉस होने लगता है, सार्कोपीनिया होता है बहुत तेजी से, क्योंकि उस स्टेज में और भी उनका प्रोटीन बंद हो जाता है। जब आप लूज कर रहे हो तो ज्यादा खाओ ना। और हाई प्रोटीन को लेकर के इसलिए डर है एक डॉक्टर्स में, उनको ऐसा लगता है कि प्रोटीन, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट उसका ज्यादा होता है प्रोटीन का, और वो किडनी के ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। ये एक नोशन है, एक हाइपोथेसिस है कि अगर हम हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज खाएंगे तो किडनी के ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को, कैपिलरीज को डैमेज करेगा, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए सिंपल सा फैक्ट है, जिसको पास करना होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन से वो पास कर जाएगा, जिसको पास नहीं होना होगा वो पास नहीं करेगा। अगर मैक्रो मॉलिक्यूलर वेट उसका बहुत ज्यादा है तो वो पास नहीं करेगा। अगर आप, क्योंकि आपका डैमेज हो गया है तो वो थोड़ा सा लार्जर मॉलिक्यूल्स को भी अब पास करने को अलाउ कर रहा है। तो वही हो रहा होता है, क्योंकि डैमेज हो गया है अब आपका, और क्योंकि अब लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो उससे पास कर सकता है उस कैपिलरी से, और वो कर रहा होता है, इसलिए आप यूरिन में प्रोटीन को पाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोटीन खाओगे तो उसके पोर्स जो है और बड़े हो जाएंगे या फिर और डैमेज कर देंगे ग्लोमेरुलस को। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का काम होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को इंक्रीज करना। आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट जैसे ही रिड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ आप प्रोटीन को जब बढ़ाएंगे अपनी डाइट में, तो आपकी ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन है कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा। और तब जाकर के आप, फिल्ट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका क्रिएटिनिन लेवल डाउन होने लगता है, क्योंकि आप यूरिन, बेसिकली यूरिन वॉल्यूम जो है अब आपका इंक्रीज कर रहा है फिल्ट्रेशन की वजह से। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रोटीन खाओगे और डायरेक्टली वो डैमेज करेगा किडनी को, और उससे आपका किडनी और भी जल्दी से डिटोरिएट करेगा। ये पूरी तरह से गलत है ये कॉन्सेप्ट। तो डॉक्टर, एक आम आदमी को अप्रोक्सीमेटली कितना प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि इसको भी लेकर के काफी विवाद होता है। जी, देखिए मेरे हिसाब से एक एवरेज एडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैं मानता हूं कि जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है एक्सरसाइज को लेकर के इतना ज्यादा भी, मतलब हेवी इंटेंस वर्कआउट में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इंक्लाइंड भी नहीं होते हैं। इन जनरल हम ह्यूमंस का नेचर होता है कि हम बहुत ज्यादा वैसा काम ना करें जो बॉडी को जिससे कष्ट हो या फिर पेन हो। तो एक्सरसाइज वाली चीज, जॉगिंग कर लेंगे लोग, रनिंग कर लेंगे, थोड़ा बहुत माइल्ड वॉक कर देंगे, उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी लोग करते हैं। लेकिन वेट लिफ्टिंग वाली जो चीज है ना, ये एक पैशन से ही आता है। और वेट लिफ्टिंग जो पैशनेट है अपनी बॉडी को हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के लिए, वही लोग करते हैं। मतलब अगर देखा देखी अगर कोई कर भी लेता है तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं फिर। तो साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गया, ये सारी चीजें हैं जो आप फिजिकल एक्टिविटी में अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में इंक्लूड रखते हो, और उससे आप सोचते हो कि मेरी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो वैसे लोगों के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि 1.2 से बिलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 1.2 ग्राम पर केजी से ऑफ बॉडी वेट। और उसमें भी क्या है कि इन जनरल हम, जैसे हम किताब में पढ़ते आए हैं न्यूट्रिशन के टेक्स्ट बुक में, कि 0.8 ग्राम पर केजी मिनिमम रिक्वायरमेंट है
टू मेंटेन बॉडी मास, मतलब कि उतना तो होना ही चाहिए डाइट में, ताकि मैल न्यूट्रिशन ना हो जाए। मैल न्यूट्रिशन को अवॉइड करने के लिए 0.8 ग्राम पर केजी होना चाहिए। पर हमें ये नहीं बताया जाता किताब में कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो वो सोर्स क्या होना चाहिए, प्लांट सोर्स से या फिर एनिमल सोर्स से। तो अगर हम वहां पे भी एनिमल सोर्स को इंक्लूड करते हैं 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के लिए, देन वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए आइडियल होगा। लेकिन अगर हम 0.8 ग्राम वो सेम अगर हम वैल्यू अगर हम प्लांट प्रोटीन के लिए अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट प्रोटीन जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता बॉडी के अंदर, और जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्योंकि प्लांट प्रोटीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपका एक कोई ना कोई एक अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड मिसिंग होता है हर एक प्लांट सोर्स फूड में। तो जैसे राइस में यूजुअली क्या है कि आपका लाइसीन आपका कम होता है उसमें, और जिस प्लांट फूड में एक एसेंशियल अमाइनो एसिड कम है उसे हम लिमिटिंग अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो अगर एक भी अमाइनो एसिड आपके पास कम होगा तो वो ओवरऑल एक जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एक प्रोफाइल चाहिए होता है अमाइनो एसिड का, वो तैयार नहीं होता है, और तब जाकर के आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो जितने रिमेनिंग अमाइनो एसिड है, क्योंकि वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्योंकि प्रोटीन का फेट होता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, अल्टीमेट जो रोल होता है प्रोटीन का, और अगर वो चीज वो नहीं दे पाएगा हमें क्योंकि हमारा प्रोफाइल प्रॉपर नहीं था, तो वो या तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर वो ग्लूकोजेनिक होगा अमाइनो एसिड तो वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देगा बॉडी में। तो यही दो फेट है। तो प्रोटीन बेसिकली हम ले रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और या तो वो ग्लूकोज दे दे रहा है। तो हमारा स्ट्रक्चर, हमारा जो है गोल ही कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है प्रोटीन खाने का। तो प्रोटीन प्लांट सोर्स अगर होगा तो 0.8 ग्राम बहुत कम। मेरे हिसाब से प्लांट प्रोटीन के लिए तो 1.2 मिनिमम होना चाहिए, तब जाकर के वो कह सकते हैं कि चाहे आप एक्टिविटी करो या ना करो। एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हो तो 1.2, अगर आप मान ही लिए हो कि मुझे अपना धर्म नहीं बदलना है, मैं वेजिटेरियन ही हूँ और यही रहूंगी पूरी जिंदगी या रहूंगा, तो आप 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ प्लांट प्रोटीन खाओ, तब जाकर के आप कहीं कुछ हद तक आप बॉडी टिश्यू मेंटेन कर पाओगे। और जहां जो भी, इसलिए दाल चावल का जो कॉन्सेप्ट है ना इसलिए आया, क्योंकि पल्सेस में क्या होता है कि आपका एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है मेथियोनिन, वो उसमें कम होता है दाल में। तो दाल में आपके पास लाइसीन है ठीक ठाक और मेथियोनिन कम है। चावल में क्या है कि आपके पास लाइसीन कम है, मेथियोनिन है। तो आप जब मिला दोगे तो दोनों का बेसिकली आप प्रोफाइल को बेटर कर पा रहे हो ओवरऑल। तो अब आपके पास लाइसीन भी है, मेथियोनिन भी है, तब जाकर के आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेटर होगा, क्योंकि आप प्रोफाइल को आप तैयार कर पा रहे हो ओवरऑल। ये आपका इश्यू एनिमल प्रोटीन के साथ नहीं होता है। लेकिन जब आप दाल चावल खा रहे हो तो आप साथ में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ग्लूकोज भी तो जा रहा है आपकी बॉडी में, तो वो प्रॉब्लम है। तो आप प्रोटीन के प्रोफाइल को तो आप मैच कर लिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी साथ में खा लिए, तो गड़बड़ हो गया वहां पे पूरा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको डाइट को कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एनिमल प्रोटीन की तरफ आपको स्विच करना ही है ओवरऑल लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। तो हमें अमीनो एसिड प्रोफाइल जिसमें कि कंप्लीट प्रोटीन हो उसे ध्यान रखना है। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन भी होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि खा लिया बट अगर एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हुआ और अगर एसिमिलेशन पूरा नहीं हुआ तो फाइनली बॉडीज बेनिफिट नहीं हो पा रही है टोटल प्रोटीन। तो इस दो चीज को अगर जो भी देख पा रही है अभी पब्लिक वो समझ पाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हम सिंपली बोलते हैं कि जो भी हम खाए हमारे गट में गया और वो एब्जॉर्ब कितना हुआ, मतलब ब्लड स्ट्रीम में कितना पहुंचा, ये एब्जॉर्प्शन है। और एसिमिलेशन का मतलब होता है ब्लड स्ट्रीम से आपका सेल उसको कितना यूज कर रहा है उस प्रॉपर मतलब फंक्शन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है सेल का, तो वो एसिमिलेशन का पार्ट होता है। तो एब्जॉर्ब अगर हो भी जाता है प्लांट प्रोटीन, एसिमिलेट नहीं होता वो इम्प्रॉपर प्रोफाइल की वजह से, अमीनो एसिड प्रोफाइल। और ये जो अमीनो प्रोफाइल अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो आप मानते हैं कि एनिमल सोर्सेस में डेफिनेटली बेटर है थोड़ा प्लांट बेस से ज्यादा? बिल्कुल, थोड़ा नहीं, मतलब वो कंप्लीट है। इवन जितना रिक्वायरमेंट है वो उससे भी ओवर होता है एनिमल में, सफिशिएंट वे में आपका अवेलेबल है वो। तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी को किसी से मैच करने की, आप सिंपली मीट खाओगे डाइट में और कुछ भी नहीं होगा, तब भी आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। मीट के साथ जो फैट है वो फैट आपको मिल रहा है, आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। जितने मिनरल्स हैं, वाइटामिन से, सब कुछ मिल जाता है मीट से। इवन वाइटामिन सी भी होता है मीट में, वो भी मिल जाता है आपको। उसके लिए भी ऑर्गन्स खाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा अगला सवाल है अंडे पे, क्योंकि अंडा
सबसे ज्यादा या सबसे वर्सटाइल या जो एक आम आदमी सबसे पहले इंक्लूड करता है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में, तो अंडा एक कंप्लीट सोर्स माना जाता है और इजीली अवेलेबल सोर्स है प्रोटीन का। बट अंडे के साथ ये इश्यू आता है, बहुत लोग डरते हैं कि ज्यादा अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या उसमें भी हार्ट डिसीज होने की संभावना है। तो उस वजह से काफी लोग अपना जो डेली का लिमिट है अंडा, एक या दो, मैक्सिमम एक या दो अंडा खा पाते हैं। तो इस पर आप थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, अंडे का तो ऐसा है कि आप कितना भी एग्स खाओ, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है तब, जब तक आपको वो इनडाइजेशन नहीं करा रहा हो। और वो जो लिमिट है ना, वो काफी मतलब इंडिविजुअलाइज चलता है। मतलब कि आप, हो सकता है कोई 4 एग्स टॉलरेट करता हो, कोई 6 एग्स करता हो, और वो भी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हफ्ते में या फिर दिन में सिर्फ एक ही अंडा खाना चाहिए या 2 अंडा खाना चाहिए, या खाना भी चाहिए तो पीला वाला हटा के खाना चाहिए। हाँ। ये सब बिल्कुल गलत है। ऐसा यॉक जो है, आप जो एग्स खा रहे हो ना, वो एग्स का मतलब है यॉक खा रहे हो तभी एग्स आप खाओ, वरना एग्स मत खाओ। एग वाइट जैसा जो प्रोटीन है वो तो आपको वे प्रोटीन में मिल जाएगा, इवन डेयरी प्रोटीन में भी आप ले सकते हो। हम्म। क्योंकि एग का जो पर्पस है एग खाने का, वो यॉक होता है। अगर आप यॉक नहीं ले रहे हो अपनी डाइट में, तब फिर मतलब कुछ भी मतलब नहीं है कि आप कितने अंडे खाए, 20 अंडे खाए या 30 अंडे खाए। अगर आप बोल रहे हो 20 अंडे खाए, तो वो होल एग होना चाहिए। जैसे मैं अगर एक बार में, अगर वन गो में मैं 24, 25, इवन 30 एग्स खाता हूँ एक बार में, तो वो पूरा 30 एग्स का यॉक होता है, एक भी यॉक हटा नहीं होता है उसमें। हम्म। तो और अगर क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड में, तो जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्चुअली जेनेटिक्स ही डिटरमिन करता है कि हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल हमारा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को लेने से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हम्म। तो उस पे हम जाएंगे नहीं। कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को लेने से, कुछ लोगों का बढ़ता है। अब ये बढ़ना घटना, ये हमें समझ में नहीं आता कि हम किस बेसलाइन हमारा क्या था और किससे बढ़ गया। हम्म। कहने का ये मतलब है, आप पहले क्या डाइट ले रहे थे और आपका उस डाइट पे क्या था ब्लड कोलेस्ट्रॉल, उस पे हम्म। डिपेंड करेगा कि हम किसको बढ़ना बोलते हैं, किसको घटना बोलते हैं। अगर हम्म। ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा फैट खा रहे हैं और उसके बाद भी हम अगर अंडे भी ऐड कर लिए, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपका फर्दर फिर बढ़ेगा। हम्म। तो क्योंकि आपकी डाइट में फैट बहुत कम है, हम्म। सैचुरेटेड फैट बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, तो आपका लोअर साइड रहता है। अब आप क्योंकि फैट थोड़ा इंक्लूड करोगे, तो डेफिनेटली आपका बढ़ेगा हम्म। ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो हम्म। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका इसका कोई हार्ट डिजीज से कोई लिंक नहीं है। मैं बताया ना, मतलब एक एसोसिएटिव लिंक होता है, एक कॉजेटिव लिंक होता है। हम्म। तो जो भी हमें बताया जाता है हार्ट डिजीज हो रहा है, वो बताया जा रहा है इस तरह से कि वो कॉज करा रहा है, मतलब वो पॉजिटिव है कहीं ना कहीं, बट वो है एसोसिएटिव। अब हम अंडे खा रहे हैं तो हम साथ में बहुत कुछ खा रहे होते हैं, हम कोक ले रहे होते हैं डाइट में, हम सिगरेट भी पी रहे होते हैं, हमारे स्लीप प्रॉपर नहीं है, हम रेस्ट नहीं लेते हैं, स्ट्रेस काफी ज्यादा है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं। तो वो सारे वजह से कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज हो रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और आप ब्लेम कर दे रहे हो एग्स को, जो हम ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट में खा हम। रहे हैं। अगर मेरे जैसे खाने वाले इंसान को अगर हार्ट डिजीज हो, देन टू सम एक्सटेंट हम मान भी लेंगे कि कहीं ना कहीं लगता है अंडा ऐसे हार्ट डिजीज करा दिया। हम्म। तो आप खा नहीं रहे हो मेरे जैसा, तो फिर बिल्कुल ब्लेम मत करो आप अंडे को। एटलीस्ट एटलीस्ट 2-3 अंडे के लिए तो सोचना ही नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक एवरेज इंडिविजुअल को 6 अंडे से कम तो खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। अगर आप 6 अंडे डेली डाइट में नहीं ले रहे हो, देन डेफिनेटली आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे फिर, और आपकी डाइट जो है पूरा ओवरऑल खराब होगी फिर। तो जो वेजिटेरियंस है अपने भारतीय लोग में, काफी फीसदी लोग वेजिटेरियंस है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि काफी लोग उसमें अंडा नहीं खाते हैं। तो ऑफ कोर्स हम अपना फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि अगर वो बाकी सारे विचारों को साइड करके अगर अपनी सेहत पे ध्यान दे, तो अंडा जरूर लेना चाहिए। बट जिनको नहीं लेना है, चाहे कोई भी उनका बिलीफ सिस्टम है उसको लेकर के, तो आपका क्या मानना है कि उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, मेरे लिए एक ही ऑप्शन है उनके लिए। मैं बोलता हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हो और आपने ये सब प्रॉब्लम है, जैसे कोई बीमारी है, क्योंकि आपके पास जो भी एडवाइस के लिए आएंगे ना, वो पूछने के लिए, वो तभी आते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है। वो बताते भले ही नहीं है हम्म। फ्रैंकली कि हमें ये प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं वो आपसे जानना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम से वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, और जब आप बताते हो कि अंडे खाओ, ये खाओ, तो वो बोले कि यार कभी नहीं खाया, बचपन से नहीं खाया मैंने, तो अब कैसे खा लूंगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप बचपन से किसी चीज को नहीं खाए हो और नहीं खाते हुए अगर आप बीमार हुए हो,
तो आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब जाकर के इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट, कि आपकी बॉडी बीमार हो गई इस चीज को नहीं लेने की वजह से, तो अब एटलीस्ट आप इनकॉर्पोरेट करो। कुछ मैटर नहीं करता कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको खाना पड़ेगा। तो मैं बस एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप नहीं खा रहे हो तो खाना शुरू कर दो। नहीं खाते हुए एक्सपेक्ट मत करो कि आप सही हो जाओगे। तो बोलते हैं कि वेजिटेरियंस का क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास, मैं बोलता हूँ वेजिटेरियंस का सोल्यूशन है वेजिटेरियन नहीं रहना। तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि हाँ ये ले लो वो ले लो, सोया खा लो या फिर लेग्यूम्स खा लो, लेंटिल्स खा लो, सोल्यूशन नहीं है वो। हम्म, आपकी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व नहीं होगी। मेरा काम है आपको सही एडवाइस करना, बिल्कुल। आप इम्प्लीमेंटेशन करना आपका काम है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है फिर। हम्म, तो वेजिटेरियंस को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे इससे क्या करना है, प्रॉब्लम आपके साथ है, आपको सोचना है कैसे ठीक करना है उसको। तो मैं यही बोलता हूँ वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन मत रहो, सिंपल सोल्यूशन है। बहुत सही डॉक्टर। अब मेरा एक और प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन को ओपन करेंगे, क्योंकि एक्चुअली बात काफी सारे और मिथ्स हैं, बट टाइम लिमिट को देखते हुए हम एक और प्रश्न लेके फिर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो सवाल है उसके लिए हम ओपन करेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक और मशहूर प्रचलन है कि हमें फल रोज खाना चाहिए। फल और फल के जूस, सब्जियों के जूस, इससे वेट लॉस काफी होता है, स्किन बहुत अच्छी होती है। हम्म। तो और काफी लोग इसे फॉलो भी करते हैं, और ये भी बोलते हैं कि ये डिटॉक्स डाइट का जो चलन है उसके लिए भी फ्रूट और फ्रूट जूसेस या वेजिटेबल जूसेस लेना चाहिए। तो इसमें आपका क्या विचार है? जहां तक फ्रूट्स की बात है, वेजिटेबल्स की बात है, मतलब ऑलमोस्ट सेम डील, जैसा मैंने पहले भी बताया कि फ्रूट्स वगैरह भी जो है ये मेनली फ्रक्टोज कंटेनिंग फूड होते हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में बेसिकली फ्रक्टोज ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्लूकोज। उसमें भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स में आपका किसी में थोड़ा ग्लूकोज वाला रेशियो ज्यादा है, किसी में फ्रक्टोज वाला रेशियो ज्यादा है। तो अल्टीमेटली जो भी मीठी चीज को हम ब्लेम कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों को हमें इंक्लूड करना होता है, ग्लूकोज को भी फ्रक्टोज को भी। और क्योंकि फ्रूट्स में दोनों कुछ है, ग्लूकोज भी है फ्रक्टोज भी है, और फ्रक्टोज इन इटसेल्फ बहुत डैमेजिंग है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा। इस चीज को हम रियलाइज नहीं करते, कहीं ना कहीं हमें ऐसा मानते हैं कि फ्रूट्स को डेली खाना बहुत जरूरी है, लेकिन डेली हम कभी खाए नहीं है, हमारा ये स्टेपल फूड नहीं होना चाहिए। हम काइंड ऑफ सीरियल्स की तरह ही फ्रूट्स को स्टेपल फूड बना लिए। और उस चक्कर में क्या होता है कि गट को ये डिस्ट्रेस करता है बहुत ज्यादा। बहुत लोगों को फ्रूट्स जो है सूट नहीं करता है गट के लेवल पे, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि फाइबर है, और इवन पॉलियोल्स भी है क्योंकि एक शुगर अल्कोहल होता है, वो भी फ्रूट्स में बहुत होता है। और जो भी आईबीएस के पेशेंट्स हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं, हम्म, उनके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है फ्रूट्स, क्योंकि इसमें जो पॉलीओल्स हैं, शुगर अल्कोहल है, ये बहुत डैमेजिंग कर होता है गट के लिए। और गैस इतना ज्यादा बनाता है, गैस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल पेरिस्टालसिस जो है गट का, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और देन आपका पूरा जो है ऐसा लगता है कि अब हमारा गट जो है स्टूल ही नहीं हो रहा है बेसिकली। तो कॉन्स्टिपेशन का एपिसोड फिर, क्योंकि 3 से 4 दिनों का कॉन्स्टिपेशन होगा तो बॉडी उसको कहीं ना कहीं उसको निकालना चाहती है, तो ऑल ऑफ ए सडन आपको डायरिया हो जाता है फिर। तो इसलिए आईबीएस का जो इश्यू होता है ना, वो ऑलमोस्ट दोनों एपिसोड का ऑल्टरनेट होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी होता है पेशेंट को और डायरिया भी होता रहता है। प्रीडोमिनेंटली आपको हो सकता है ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है किसी को डायरिया ज्यादा हो, लेकिन ये दोनों एपिसोड आपका चलता रहता है आईबीएस के पेशेंट्स में। तो उन सारी चीजों को अगर कंसिडर करते हैं तो फ्रूट्स थोड़ा भी हेल्दी नहीं है हमारे लिए। हाँ, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एंजॉयमेंट पर्पस के लिए आप कभी कभी ओकेजनली ले लिए, वो अलग चीज है, क्योंकि फ्रूट्स खाने से अच्छा तो लगता है थोड़ी देर के लिए डेफिनेटली, ये मैं भी कहूंगा। क्योंकि फ्रूट्स खाता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ डोपामिन हिट मिला, क्योंकि शुगर है तो वो तो मिलना ही है। बट उसको डेली आप इंक्लूड करेंगे, मार्केट से खरीद के लाके घर पे रखेंगे तो आप खाएंगे ही। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि खरीद के लाके रखो ही मत घर पे, घर पे रखोगे तो खाओगे ही, खाओगे। सिंपल सी बात है। और क्योंकि फाइबर भी है उसमें बहुत ज्यादा, और फाइबर भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो वो सब भी अननेसेसरीली आप गार्बेज स्टफ को डाल रहे हो बॉडी के अंदर, तो वो प्रॉब्लम ही है। तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और इवन डिटॉक्स डाइट की जो आपने बात की, डिटॉक्स डाइट कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं क्योंकि हमारी डाइट बहुत गंदी है, ऑब्वियसली गंदी है, तो आप डिटॉक्स करते हो फिर, और टॉक्सिन आप डाल रहे हो बॉडी में, और फिर से टॉक्सिन डाल रहे हो टॉक्सिन को हटाने के लिए। तो फाइबर इन इटसेल्फ जो केल का जूस और पता नहीं गोभी का और ये सब कुछ मिला करके, स्पिनच। पालक का जूस, हाँ, ये सब बना करके पीते हो, पूरा भरा हुआ है टॉक्सिन।
तो एक टॉक्सिन दूसरे टॉक्सिन को कैसे बाहर निकालेगा? टॉक्सिन बाहर निकालने का काम होता है किडनी का, हम्म। स्टूल के थ्रू या तो निकलेगा, या यूरिन के थ्रू निकलेगा, या आप स्वेट के थ्रू निकालोगे। यही बेसिकली 3 राउट है जिसके थ्रू आप वेस्ट को निकालते हो बाहर। हम्म। और अल्टीमेटली आपका अगर ऑर्गन सिस्टम वेल फंक्शनिंग है, बहुत अच्छे से अगर काम कर रहा है ऑलरेडी, तो वो निकल ही जाएगा। तो टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए ऑर्गन सिस्टम हमारा बना है, उसके फंक्शन को आप रिस्टोर करके रखो प्रॉपर डाइट के थ्रू, तब जा करके आपको डिटॉक्स डाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब जूस और वूस ये सब पीने की जरूरत नहीं है किसी को भी। डॉक्टर, अब एक क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज को लेकर के है, क्योंकि काफी लोग ये मानते हैं फैट लॉस या चर्बी घटाने के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग ये बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें कई बार नहीं मिलता है जितना वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से उन्हें वेट लॉस नहीं मिलता है। तो आपका क्या मानना है कि चर्बी घटाने और फैट लॉस के लिए सबसे एफिशिएंट व्यायाम या एक्सरसाइज अगर किसी को शुरू करना है तो वो क्या रहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्सरसाइज रिक्वायर्ड नहीं है फैट लॉस के लिए। लेकिन अगर इफेक्टिव मायने में अगर कोई मेरे से पूछे कि इफेक्टिव कौन सा मोडालिटी को हम अप्रोच करें, तो मेरे हिसाब से वेट लिफ्टिंग ही बेस्ट है। वेट ट्रेनिंग, जिसे हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं, हम्म। अगर आप उसको अडॉप्ट करोगे अपने लाइफस्टाइल में, देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलेगा। और मेरे हिसाब से कार्डियो तो नहीं करना चाहिए। अगर आप वीकली वंस कभी कर ले रहे हो ऐसे ही जॉगिंग तो ठीक है, लेकिन उसको डेली बेसिस पे आपको कार्डियो नहीं करना चाहिए, स्पेशली स्लो स्टेडी स्टेट ऑफ कार्डियो जो हम बोलते हैं। एक हम्म। कांस्टेंट स्पीड पे हम एक सर्टेन डिस्टेंस तक भागते रहते हैं लंबे लंबे समय तक के लिए, हम्म। तो वो जो है हमारी बॉडी के लिए डैमेजिंग होता है, क्योंकि आप इंटेंसिटी आपकी ज्यादा नहीं है। और जब भी इंटेंसिटी आपकी कम होगी एक्सरसाइज की, तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा एक्सरसाइज का, मतलब ज्यादा देर तक के लिए आप कर सकते हो। हाँ। कोई भी एक्टिविटी की अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा देर कर नहीं सकते हो, कर नहीं क्योंकि वो सकते। इंटेंस बहुत ज्यादा था। तो अगर कोई भी एक्सरसाइज जिसकी इंटेंसिटी कम है, वो एक्सरसाइज हमारे लिए आइडियल नहीं है, हमारी बॉडी के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। तो उस तरह के एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना चाहिए और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे स्प्रिंटिंग हो गया हम्म। या फिर वेट लिफ्टिंग हो गया। आप हेवी वेट्स करते हो, थोड़ा रेस्ट लेते हो, आपका हार्ट जो हार्ट रेट है वो अगर टुवर्ड्स बेस लाइन के लेवल पे आता है, काफी कम हो जाता है, देन आप नेक्स्ट सेट करते हो उसके बाद। क्योंकि वेट बहुत ज्यादा आपको करना है, तो आप जब तक हार्ट रेट को बेस लाइन पे नहीं आने दोगे, आप नेक्स्ट सेट कर नहीं पाओगे अच्छे से। हम्म। तो इस तरह के जो शॉर्ट बर्स्ट एक्टिविटी जो है ना, रिपीट बर्स्ट एक्टिविटी, इस तरह के एक्टिविटी को लोगों को करना चाहिए हम्म। लॉन्ग टर्म, इवन हार्ट हेल्थ के लिए भी, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। तो कार्डियो और ये स्टेडी स्टेट कार्डियो, ये सब बहुत खराब चीज है, ये सब मतलब बिल्कुल नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। और जहां तक फैट लॉस की बात है, तो फैट लॉस आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी डाइट सही नहीं है, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो कहीं ना कहीं। और मैं आज तक ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं देखा जो ये बोल रहा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा हूँ फिर भी फैट लॉस नहीं हो रहा है। आज तक ऐसा कोई, मतलब मुझे ऐसा लगता है प्लेनेट पे कोई एग्जाम्पल नहीं होगा इसका, जो बता दे कि मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता हूँ लेकिन फिर भी मोटा हूँ। ये चीज है। ये एक आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात कही है कि वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज जरूरी नहीं होता है। अगर आप अपनी डाइट को सही कर लें और लो कार्ब अप्रोच कर लें तो उसी से ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है लोग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा जिम में रेगुलरली जाते हैं लेकिन खाना नहीं बदलते हैं और उस वजह से फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। और एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करूंगा। एक्सरसाइज बहुत लोग ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है एक खाने की लिबर्टी आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि मुझे 500 कैलोरी वहां बर्न करना है, तो चलो एक टैकोस खा लेंगे, एक हाँ। मफिन्स खा सकते हैं। हम्म। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप खुद को ही बेसिकली ट्रैक से आप बाहर कर रहे हो, हम्म। गलत चीजें खा करके। तो हम्म। एक्टिविटी में आप कितना बर्न करते हो, इफेक्टिव एनर्जी हम कितना बाहर निकाल रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये एक्चुअली हम इसको कैलोरी से जज नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। तो इफेक्टिव एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो कैलोरी उसे एसेस नहीं कर पाती, कैलोरी डिटरमिन नहीं कर पाती। कैलोरी एक बहुत लूज, एक रफ आइडिया है, हमें ऐसा लगता है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन जितनी हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे फूड वाला हम्म। कैलोरी, वो हमारी बॉडी के लिए कुछ और ही होता है। हो सकता है कुछ ज्यादा हो सकता है कुछ कम हो। हम्म। तो हमेशा वो 20% का एरर होता है, प्लस माइनस। हम्म। तो वो वहीं पे जब प्रॉब्लम है तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और गलत चीज को आप खाते हो तब जाकर के आप सोचते हो कि चलो एक एक्सरसाइज, एक असिस्टेंट, एक टूल की तरह आप उसको यूज करते हो कि गलत खाएं तो चलो भाग लेते हैं आज। हम्म। तो ऐसा नहीं करें, आप डाइट करें, अच्छी डाइट पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं,
अगर आप बहुत आलसी टाइप के हैं, अगर आपको कुछ करने का मन नहीं करता, तो घर में बैठे रहिए, कार्बोहाइड्रेट बंद करके फैट लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण आपने पॉइंट रेस किया है, क्योंकि इतने जिम चलते हैं लोग रोज, काफी जाके वहां पे मेहनत करते हैं, और जो मेन पॉइंट है कि खाना बदलना है और उसमें भी खासकर कार्बोहाइड्रेट कम करना है, ये काफी लोग नहीं कर पाते, जिस वजह से वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो इसको आपने हाईलाइट किया है बहुत। आई होप जो भी अपने दर्शक हैं और जो भी आगे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उन्हें इस चीज का अगर एक बार भी रियलाइजेशन हो गया, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो काफी एक एक करके सॉल्व हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों का एक्सक्यूज ये भी होता है, जैसे एक चीज मैं बताऊंगा इसमें, कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं तो सिर्फ 50 ग्राम्स खा रहा हूँ कार्ब्स, या फिर मैं कहता हूँ मैं तो सिर्फ 30 ग्राम सर खा रहा हूँ, पर फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, मैं तो कीटोजेनिक डाइट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वेट लॉस नहीं हो रहा है। मैं बोला, अगर 30 ग्राम्स को खाते हुए नहीं हो रहा है फैट लॉस, देन 20 कर दो ना, 10 कर दो, 0 कर दो। कौन कह रहा है 30 भी खाने को? मतलब कार्बोहाइड्रेट का रहना जरूरी थोड़ी ना है। अगर 30 ग्राम्स खाते हुए नहीं हो रहा है तुम्हारा फैट लॉस, इसका मतलब 30 ग्राम्स तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। हम्म। अगर किसी का 100 ग्राम पे भी फैट लॉस हो रहा है, तो वो खाने दो उसको। हम्म। कंपेयर नहीं करना होता है हमेशा, हर की बॉडी अलग होती है, अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है कार्बोहाइड्रेट इनटेक पे। तो अगर किसी की बॉडी 30 ग्राम्स पे भी लूज नहीं कर रही है फर्दर, देन डेफिनेटली तुम्हें उसके नीचे जाने की जरूरत है। हो सकता है तुम्हें फास्टिंग की जरूरत हो, एग्रेसिव फास्टिंग की जरूरत हो तुम्हारी बॉडी को। क्योंकि जितनी भी ओबिसिटी है ना, ये लोग क्रॉनिकली इतने ज्यादा इन्फ्लेम्ड हैं कि इनकी हाँ। बॉडी लो एनर्जी पे भी, लो कार्बोहाइड्रेट पे भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। एक सर्टेन लेवल पे आके प्लेटो आ जाता है उनका। हम्म। तो उसमें कहीं ना कहीं फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप हम्म। खाना आपको बंद करना पड़ेगा कहीं ना हम्म। कहीं, तब जाकर के फिर रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल, और फास्टिंग से शायद इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है हर एक बॉडी में, तो उससे भी फिर धीरे धीरे बॉडी रेस्पॉन्ड करती है फास्टिंग से, जैसे आपने बताया। बिल्कुल। अब हम दर्शकों के सवाल लेंगे, तो एक सवाल है सुखदेव जी का, जो ये बोल रहे हैं कि वे प्रोटीन का क्या विचार है, कि हमें लेना चाहिए, या स्पेशली अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें कितनी मात्रा तक हम ले सकते हैं। ये प्रश्न है सुखदेव जी की तरफ से। देखिए, वे प्रोटीन का जो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो वो तरीका है ना, वो बहुत बढ़िया नहीं है। क्योंकि जितने भी प्रोटीन है सब, इवन डेयरी प्रोटीन है वो वे प्रोटीन, तो उसमें क्या हो रहा है ना कि आप फैट को हटा के रखे हो। उस वे प्रोटीन से फैट नहीं होता। जितने भी प्रोसेस्ड प्रोटीन पाउडर आते हैं उसमें फैट नहीं होता है। शुगर आप हटा दियो। अभी आजकल के मार्केट में शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर भी आने लगा है। लोगों को पता है कि चलो शुगर अच्छा नहीं है, तो फिर अब जो इंडस्ट्री वाले हैं शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर भी बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसमें फैट नहीं है, तो प्रोटीन का एक काम सिर्फ लीन प्रोटीन को बिल्ड करना नहीं है, लीन प्रोटीन मसल मास को मेंटेन करना नहीं है। प्रोटीन का एक काम होता है सैटिस्फैक्टी प्रोवाइड करना। तो अगर आप प्रोटीन लीन है आपका, तो वो प्रोटीन आपको सैटिस्फैक्टी नहीं देगा, क्योंकि फैट नहीं है उसके साथ। हम्म। तो प्रोसेस्ड प्रोटीन का प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो उसमें फैट नहीं है, इसलिए भी है क्योंकि वो प्रोसेस्ड है। और जब भी प्रोसेस्ड फूड हम लेते हैं, तो उसकी बॉडी का जो हमारी गट पे जो इन्फ्लुएंस होता है हॉर्मोन्स पे, उसका एंटायरली डिफरेंट होता है। जब हम एक चंक ऑफ मीट खाएंगे और 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन लेंगे, दोनों की सेटेटी में बहुत डिफरेंस होगा। सेटेटी आता ही नहीं है प्रोटीन पाउडर खाने से। हम्म। हो सकता है आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हो, डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। लेकिन प्रोटीन का एक और है गोल हमें लेने का, कि हमें सैटिस्फैक्टी मिले प्रॉपर, ताकि हमें भूख ना लगे बार बार। लेकिन वो चीज वहां पे मिसिंग है, क्योंकि जो प्रोसेस्ड प्रोटीन, प्रोसेस्ड फूड होता है, हम्म। उसका जो हमारे इनक्रेटिन्स गट हार्मोन्स होते हैं ना, उस पे हम्म। डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। हम्म। जीआईपी का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होगा, जीएलपी का रिस्पॉन्स बहुत कम होगा। तो हम्म। जीआईपी का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होगा, तो इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। हम्म। और जीएलपी 1 का कम होगा, और इंसुलिन का सिक्रेशन आपका कम होगा। तो हमारी बॉडी के लिए जो ऑप्टिमल हेल्थ होता है, मेटाबॉलिक हेल्थ, उसके लिए जीआईपी का सिक्रेशन कम होना चाहिए, जीएलपी 1 का ज्यादा होना चाहिए। इसलिए अभी मार्केट में जीएलपी 1 एगोनिस्ट बहुत चला हुआ है, जैसे सीमाग्लूटाइड, हम्म। ये सब सारे ड्रग्स, वेट लॉस ड्रग्स। क्योंकि वो ड्रग्स क्या कर रहा है, जीएलपी 1 के लेवल को बढ़ा रहा है हम्म। और जीआईपी को कम कर रहा है। हम्म। और लेकिन हमारा फूड कैसा है, हमारा फूड ऐसा है जो जीआईपी को बढ़ा रहा है, जीएलपी को कम कर रहा है, जो अच्छा हम्म। नहीं है। हम्म। तो इवन गट के लिए भी, गट लेवल पे अगर हार्मोन्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो वे प्रोटीन बहुत अच्छी चीज नहीं है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लोगे डेफिनेटली, हम्म। लेकिन अदर एस्पेक्ट आपका कहीं ना कहीं मिसिंग होगा।
वो सही नहीं रहेगा। और ये वे प्रोटीन जनरली उन्हीं के लिए होता है जो मतलब मान बैठे हैं कि हमें नहीं खाना है एनिमल प्रोटीन, वही लोग वे प्रोटीन की तरफ भागते हैं। और इवन नॉन वेजिटेरियन भी, सो कॉल्ड ही नॉन वेजिटेरियन है हमारे इंडिया में, वो हफ्ते में एक दिन खाते हैं नॉन वेज, बोलते हैं हम नॉन वेजिटेरियन। तो उस चक्कर में वैसे लोग ही प्रोटीन पाउडर के पीछे भागते हैं और वो खाते हैं। तो मैं बस एक ही चीज एडवाइस करता हूँ, मैं बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको वे प्रोटीन के साथ ये सारा प्रॉब्लम भी है, इसको ध्यान में रखना है। खाते रहने से आपका लॉन्ग टर्म हेल्थ इसमें मेंटेन नहीं रह पाएगा। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना ही सिर्फ गोल नहीं है, प्रोटीन खा के, वे प्रोटीन खा के। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आप अगर सोचेंगे, तब जाकर के आप हो सकता है चेंज के लिए तैयार हो। क्योंकि चेंज के लिए सबसे पहले है राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फिर आप बदलोगे क्यों? तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं राइट इन्फॉर्मेशन दूं, हो सकता है बदल जाए, और नहीं भी बदले तो उसमें लॉस उसका ही है, मेरा कोई लॉस नहीं होगा। ये चीज है। राइट। मिस्टर गणपति जी का क्वेश्चन है कि जो लोग कीटो या कार्निवोर डाइट नहीं कर पाते हैं, क्या उन्हें घी और बटर स्टिल कुकिंग के लिए इंक्लूड करना चाहिए या नहीं? अगर आप अगर आपकी 10 से 12 चीजें खराब हैं, आप मान लिए हो कि मुझे 8 से 10 चीजें नहीं बदलनी है, तो 2 चीजें जो बदलना चाह रहे हो वो तो बदल लो। तो डेफिनेटली मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर आप कुकिंग में कीटो नहीं करना है, कार्निवोर डाइट नहीं करना है, तो कुकिंग में जो आप जो रैंसिड ऑयल यूज कर रहे हो, पॉली अनसैचुरेटेड फैट बेस्ड ऑयल, उसको आप बदल के घी कर लो या कोकोनट कर लो। बेस्ट तो हमेशा घी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एनिमल सोर्स का प्लांट प्रोटीन हो या फैट हो, बेस्ट होता है। कोकोनट ऑयल मैं कहीं मानता ही नहीं हूँ कि बहुत हेल्दी है, इवन मतलब कंपेयर टू आपका घी, अदर ऑयल से बेटर है कोकोनट ऑयल। तो हमेशा आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है कि आप कोकोनट ऑयल को बेहतर कह रहे हो तो किस वे में बेहतर कर रहे हो। इस वे में क्योंकि वो फार फार बेटर है सनफ्लावर ऑयल से, इसलिए नहीं कि घी भी है हमारे पास फिर हम कोकोनट ऑयल को हम बेटर बोल रहे हैं, नहीं। एनिमल जो फूड, एनिमल ही फूड है हमारा, प्लांट फूड ही नहीं है। तो प्लांट का जो भी डेरिवेटिव होगा हमारे लिए इंफीरियर ही होगा। तो घी में आप यूज कर सकते हो, घी में करो, कोकोनट में कर सकते हो, कोकोनट में करो, लेकिन डेफिनेटली आप रिफाइंड ऑयल यूज मत करो, ओमेगा 6 वाले फैट्स को यूज मत करो कुकिंग के लिए। अगला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ऑटो इम्यून डिसीज सोरियासिस पे कार्निवोर डाइट, हाइपर कार्निवोर डाइट का क्या इफेक्ट है, क्या असर पड़ता है? कार्निवोर डाइट का असर ये है कि बेसिकली आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए वो तो मिल जाता है, क्योंकि आपकी डाइट में मोस्टली मीट है और एग्स है। डेयरी तो ऑप्शनल वाला एक आपका चीज है कि कोई लोग चीज यूज करेंगे, कोई क्रीम यूज करेंगे, कोई बटर यूज करते हैं, कोई थोड़ा बहुत योगर्ट भी यूज करते हैं। तो अल्टीमेट जो न्यूट्रिशन है ना वो आपका तो फुलफिल, सॉरी, हो ही जा रहा है मीट से और एग से। तो रेस्ट क्या है वो आपके लिए एडिशनल है, अगर आप किए तो ठीक है, अगर नहीं भी किए तो भी ठीक है। तो क्योंकि आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल जा रही है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है आप एलिविएट कर पा रहे हो, मतलब इन्फ्लेमेशन को आप कम कर पा रहे हो, हटा पा रहे हो। क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी को मिल रहा था कार्बोहाइड्रेट से और प्लांट बेस्ड ऑयल से, जो सनफ्लावर ऑयल था, मस्टर्ड, इवन मस्टर्ड ऑयल था, ये सारे ऑयल से आपको मिल रहा था, वो अब नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्योंकि अब आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं है, क्रॉनिकली आप इंसल्ट नहीं कर रहे अपनी बॉडी को, टॉर्चर नहीं कर रहे, तो अब आपकी बॉडी हील भी करेगी। और हीलिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है कार्निवोर डाइट। तो इस तरह से जितने भी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज हैं, बेसिकली इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का ही इशू है सारे लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे आप डायबिटीज ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, गाउट ले लो, ये सारा बेसिकली एक्सप्लेन्ड होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से। चाहे सोरियासिस हो, चाहे वो स्किन कंडीशन हो या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, वो चाहे आपका कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व होने लगता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारे में कहीं ना कहीं आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही है जो रूट कॉज पे है। तो अल्टीमेटली रूट कॉज आपका आ ही रहा है डाइट से। मतलब आपकी बॉडी को, आप जो अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? कहीं ना कहीं आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और इन्फ्लेमेशन को हटाओगे क्योंकि आप न्यूट्रिएंट्स को डाल रहे हो, आपकी बॉडी खुद ही हील करेगी। तो बेसिकली वो डाइट कुछ नहीं है, वो डाइट जो आप ले रहे हो कार्निवोर डाइट आपकी बॉडी को अलाउ कर रहा है हील करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ मैजिक कर रहा है, नहीं, आपकी बॉडी तो है ही अपने आप में मैजिक है। बॉडी केपेबल है उस चीज को करने के लिए, वो बस क्या कर रहा है, जो आप ब्रेक लगाए हुए थे उस ब्रेक को हटा देता है कार्निवोर डाइट। अगला सवाल शर्वरी पाटिल से है कि जिनको एग से एलर्जी है
तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे? एलर्जी हटाने का कोई तरीका है? एलर्जी टू एग्स। मुझे ऐसा लगता है एग्स के लिए एलर्जिक होते हैं, बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग एग्स वाइट के लिए भी होते हैं, और बहुत लोगों को एक्नीज वगैरह भी ट्रिगर होता है एग्स खाने से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्स के लिए एलर्जिक हैं तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वो एलर्जिक हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग एलर्जिक नहीं होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो एग्स के साथ ब्रेड खा रहे होते हैं या फिर अदर चीजें भी खा रहे होते हैं, और अल्टीमेटली जब प्रॉब्लम होती है उनको, तो उनको ऐसा लगता है एग्स से हो गया। तो एग्स को एलर्जी बताने के लिए आपको प्योरली एग्स खाना होगा और पूरे दिन और भी चीजें ऐड नहीं करनी होंगी। तब जाकर के आपके गट के लेवल पे या फिर स्किन के लेवल पे कोई इश्यू है, तब आप बता सकते हो, कह सकते हो कि हाँ एग्स ही प्रॉब्लम है हमारे लिए। वैसे सिचुएशन में भी अगर मैं मान लेता हूँ कि सिर्फ एग्स खा रहे हो फिर भी आपको ट्रबल हो रहा है, देन डेफिनेटली मैं बोलूंगा एग्स को अवॉइड करो। क्योंकि जो आइडियल जो फूड है हमारे लिए वो मीट है, रेड मीट। तो मोस्ट ऑफ द लोग जिनको एग्स के लिए एलर्जी है वो रेड मीट या वाइट मीट भी ले सकते हैं, चिकन वगैरह, तो उनके लिए वो बेस्ट होगा। अगला सवाल है प्रणय प्रसून जी से कि अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल मेंटेन करने के लिए क्या वो सैचुरेटेड फैट ले सकते हैं? शायद ये ऑलरेडी आपने एड्रेस किया था पॉडकास्ट में, बट उनका सवाल यही है कि ट्राइग्लिसराइड लेवल उनको मेंटेन करना है, उसके लिए सैचुरेटेड फैट ले सकते हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि ट्राइग्लिसराइड्स उनका कितना है, किस लेवल पे अभी है, और किस लेवल पे वो करना चाहते हैं। तो मैं एक इन जनरल में मान के बताता हूँ कि वो क्या सोच रहे होंगे। डेफिनेटली उनका हो सकता है रेफरेंस रेंज के बियॉन्ड होगा, मतलब हायर साइड होगा। लेट्स से उनका 150 से ऊपर अगर रह रहा है ट्राइग्लिसराइड, तो मुझे नहीं लगता कि उनको फैट को घटाने की जरूरत है। क्योंकि ब्लड में आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़े या ब्लड में आपका शुगर बढ़े, परसिस्टेंटली, मैं शॉर्ट टर्म राइज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर परसिस्टेंटली आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ रह रहा है, जैसे हम डायबिटीज बोलते हैं, या फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, देन इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है, फैट भी जा रहा है। कभी भी सिंगल चीज को आप लेकर के सिंगल चीज को बढ़ा नहीं सकते ब्लड में। आप सिर्फ फैट खाओ और फैट बढ़ जाए ब्लड में, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ फैट खाओगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड लोअर साइड रहेगा, क्योंकि बॉडी उसको यूज कर रही है, कंटिन्यूअसली यूज भी कर रही है एनर्जी के लिए। बढ़ने का मतलब है आपकी बॉडी उसको यूज नहीं कर रही है, इसलिए ब्लड में बढ़ रहा है। सेल उसको यूज नहीं कर रहा है एनर्जी के लिए, इसलिए वो बढ़ रहा है ब्लड में। तो ब्लड में अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं ग्लूकोज को भी यूज कर रही है, इसलिए वो फैट को स्पेयर कर रही है और ब्लड में बढ़ जा रहा है। तो आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करिए, फैट को मत घटाइए। फैट को एनर्जी के लिए, चलने के लिए आपको फैट को इंटैक्ट वे में रखना पड़ेगा, उससे कहीं ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको घटाना भी तो है कार्बोहाइड्रेट। तो सफिशिएंट एनर्जी के लिए आप फैट को बढ़ा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट को कम करो। डेफिनेटली आपके ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो ड्रॉप करेगा, वो कर रही है। अपने सवाल जितने भी थे वो मैंने एड्रेस कर लिए हैं, जितने भी दर्शकों के सवाल है। कोई एक और सवाल हम ले सकते हैं ये फाइनल, जिसके पहले कि हम फिर सेशन को समाप्त करें। तो कोई और क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें प्लीज। डॉक्टर किशले, वैभव है। आवाज आ रही है आप? हाँ, ये आ रही है। हाय। मैं आपको इंस्टा में काफी फॉलो करता हूँ काफी टाइम से। आई बीन कॉन्टैक्टिंग। मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है, हिंदी में ही बात करूंगा आपसे मैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेके आपका क्या विचार है? आई मीन हफ्ते में आई ऑल्सो डू 3 to 4 times, बट थोड़ा उसका स्केड्यूल अगर बताएंगे तो थोड़ा हेल्पफुल होगा। बाकी तो वेरी हेल्पफुल सेशन एज ऑलवेज। हाँ, जैसे मेरा ऐसा मानना है, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो प्रोग्राम है ना वर्कआउट का, वो ऑल्टरनेट डे का होना चाहिए, डेली रेजीम तो नहीं होना चाहिए। और ऑल्टरनेट डे का इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप जिस दिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम टॉर्चर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप मैक्सिमम टॉर्चर करोगे तो आप हील करने के लिए भी आप बॉडी को अलाउ करोगे, एटलीस्ट फॉर, मेरे हिसाब से 30 आवर्स 48 आवर्स जो भी है उस बीच में। तो आज अगर आप टॉर्चर किए हो अपनी बॉडी को, देन नेक्स्ट डे आप रेस्ट लो। और नेक्स्ट डे अगर रेस्ट नहीं लेकर के आप जिम कर ले रहे हो, देन इसका मतलब आप प्रीवियस डे जो भी आप वर्कआउट किए वो सफिशिएंट नहीं था, वो टॉर्चर आपकी बॉडी के लिए, तभी आप नेक्स्ट डे कर पा रहे हो। तो आपको वर्कआउट अपना ऐसा करना है कि आपको नेक्स्ट डे करने का मन ही ना करे।
जैसे मैं जिस दिन वर्कआउट करता हूँ, मैं नेक्स्ट डे मुझे मन नहीं करता करने का, तो मैं आराम ही करता हूँ। और यही सही वे है बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म। देखिए इनिशियली क्या होता है ना, 20s में जब जो भी होते हैं बंदे, वो उनको ऐसा लगता है कि हम जितना करेंगे मसल बिल्डिंग होगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा। तो आपकी बॉडी ग्रेजुअली, इनिशियली क्या होती है, आपकी बॉडी टॉर्चर को बहुत अच्छे से बियर कर लेती है इनिशियली। ग्रेजुअली एज के साथ क्या होता है ना, ये कैपेसिटी जो है बियर करने की वो कम होते चली जाती है, नहीं कर सकती इस तरह से डेली डेली टॉर्चर। तो यंग एज में क्या हो रहा है कि आप डेली भी कर रहे हो तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर ले रही है अच्छे से। इसका ये मतलब नहीं है कि उसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है अर्ली 30s में या लेट 30s में। तो जैसे हमारा एज हो रहा है, हमें रेस्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। और आज अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट डे नहीं करेंगे। और मोस्टली जो हमारा वर्कआउट स्प्लिट होगा वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ होल बॉडी स्प्लिट होगा। होल बॉडी स्प्लिट का मतलब है कहीं ना कहीं हम अपर बॉडी को लोअर बॉडी को एंगेज करेंगे। और ये आइसोलेशन वर्कआउट नहीं करेंगे, जैसे आज सिर्फ बाइसेप्स कर लिए या फिर सिर्फ काफ कर लिए या फिर सिर्फ ट्रैप्स कर लिए। इस तरह का वर्कआउट मैं नहीं बताता हूँ किसी को भी। जब भी वर्कआउट करो तो होल बॉडी वर्कआउट करो, तभी टॉर्चर प्रॉपर मिलेगा, तभी नेक्स्ट डे आप रेस्ट करने का आपको मन करेगा। ये मेरा फंडा है, और बहुत सिंपल भी है और बहुत सस्टेनेबल भी है ये। सही है, मेरा भी ऐसे ही रहता है, 2 से 3 दिन का ब्रेक रहता है, एंड दिस हैज बीन कंफर्टेबल विद मी, आई मीन विद वर्क एंड ऑल। सो काफी अच्छा लगा आपको आज देख के भी इन सेशन। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। या थैंक थैंक यू। यू। हेलो, मैं एक सवाल पूछना चाहता था डॉक्टर किशलो से। जी। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी ये जो पॉडकास्ट है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं सहमत हूँ आपसे। मैं भी करीबन 90-95% कार्निवोर डाइट पे ही हूँ। लेकिन जैसे हमारे प्रदेश में बहुत सारे लोग जो हैं वो बाय बर्थ ही वेजिटेरियन हैं, और ऊपर से लोगों ने वेजिटेरियनिज्म को धर्म के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये दिन नहीं खाना है, ये हमारे धर्म को ये है। इवन मुझे कई बार अपने इंस्टीट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं बतौर भौतिक विज्ञान का प्रोफेसर काम करता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो कई बार मुझे, मेरे पास नॉन वेज डाइट होती है, तो मुझे माइक्रोवेव में जब गर्म करना होता है तो मुझे कई बार लोगों का एतराज भी आता है कि आप हमारे माइक्रोवेव में फिश को जब गर्म करते हो तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, हमारा धर्म इस बात को अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं। तो वो उनको कन्विंस करने के लिए कुछ पंच आइडिया, कुछ पंच लाइंस अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि बड़ा बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश कर चुका हूँ कई कई बार, कई लोगों को मैं अंडों की तरफ तो ले आया हूँ, लेकिन इससे आगे मैं जा नहीं पाया। अगर थोड़ा आप इसमें कुछ प्रकाश डालें तो। जी, ये प्रॉब्लम एक्चुअली आपके साथ ही नहीं है, मतलब सभी के साथ है, हमारे साथ भी है। और जितने इवन जो भी इस स्पेस में काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ कोचेज हों या फिर डॉक्टर्स हों, ये सभी के साथ है। और बहुत मुश्किल है इस चीज को निकाल पाना दिमाग से किसी के कि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि ये सब ना एक आइडियोलॉजी का पार्ट है, माइथोलॉजी का पार्ट है। और हिंदू माइथोलॉजी को इतना ज्यादा लोग मतलब मानते हैं, इतना ज्यादा दिल से लगा के बैठे हुए हैं कि उससे कुछ भी आप अगेंस्ट आप बात करेंगे तो उनको लगेगा कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, या फिर एंटी हिंदू है, या फिर प्रो मुस्लिम है, कुछ भी बोलते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जनरली मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं बोलता हूँ कि आप अगर एनरोल होना चाह रहे हो मेरे ट्रीटमेंट के लिए, तो बेसिकली ये आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है पर्सनली। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो अल्टीमेटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो आपको लगना चाहिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, और सिर्फ इसे मैं ही बाहर ठीक कर सकता हूँ, इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो जब तक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं आएगी अपने डिजीज को रिवर्स करने के लिए, तब तक हम डॉक्टर्स हेल्थ कोचेज उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका है कि बेसिकली वो कितना सीरियस है अपने हेल्थ को लेकर के। तो मैं बोलता हूँ अगर आपको ये सारे चेंजेस करने हैं तभी आप मेरे पास आए, वरना ना आए, आपका मनी वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा फिर। तो मैं अल्टीमेटली ऐसा ही बोल देता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को ना, क्योंकि इंडिया में इन लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सिर्फ हो करके भी ये लॉजिकल हो जाए ये जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे तो मैक्सिमम लोग हैं, जितने लोग भी हिंदू ये सारे कल्चरल और रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं, मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन वो मानते नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के नहीं है लोग, और इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और मानते भी नहीं है कि क्योंकि हमारी डाइट में नॉनवेज ही नहीं रहा है और हम बीमार हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जो चीज नहीं खा रहे थे हम उसको अब प्रायोरिटाइज करना चाहिए।
तो जो चीज खाते हुए तुम बीमार हो उसी को प्रायोरिटाइज करते हो बीमार होने के बाद भी। तो ऐसे लोगों को आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो कन्विंस करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अपने जो हेल्थ कंडीशन है वही अगर मोटिवेट नहीं कर पा रहा उनको, तो हम लोग कौन होते हैं उनको मोटिवेट करने वाले किसी डाइट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस क्योंकि नहीं है कॉमन पब्लिक के पास, तो इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो बहुत ज्यादा अगर आप उनको कन्विंस करने में लगेगा तो आपको भी नुकसान होने लगेगा। तो बहुत ज्यादा मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप दूसरों को कन्विंस करने के चक्कर में मत रहिए, आप अपना राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए। समय के साथ मैं ऐसा मानता हूँ कि सब कुछ बदलेगा, और बदल ही रहा है, बहुत हद तक हम लोग बदल पाए हैं इस तरह से करके, और आगे भी बदलते रहेंगे। रिवॉल्यूशन तो आएगा ही डेफिनेटली। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब सुन के, काफी क्लैरिटी हुई। थैंक यू। अब हम ये सेशन एंड करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास अब समय जो निर्धारित समय उससे भी ज्यादा हमने थोड़ा ले लिया है, क्योंकि सेशन बड़ा ही मजेदार है। और डॉक्टर साहब आपने सारे जो पॉपुलर मिथ्स हैं उस पे बहुत क्लैरिटी डाली है, काफी अच्छा डिस्कशन रहा अपना। और भी कुछ और पॉइंट्स थे, बट आई थिंक अब अपन कभी भी नेक्स्ट सेशन के लिए इसको जरूर रखेंगे, क्योंकि जितना ये हम मिथ्स को बस्ट करते हैं, जितनी गलतफहमियां हम राइट इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जैसे आपने कहा उसके बेसिस पे अगर करते हैं, तो इसको आगे सुनने वाले और देखने वाले अगर थोड़े भी लोग हों, तो अगर उनके हेल्थ पे अगर प्रभाव पड़ता है यार, उनकी जिंदगी बदलती है, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो आप समय निकाल के आए हमारे पॉडकास्ट पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you, Pramila. Thank you so much. Now, I would just want Shashi or Anup ji, if you would like to say a few words. थैंक यू डॉक्टर किसले, काफी लंबे समय का इंतजार करवाया आपको बुलाने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, एंड इट वाज अ नाइस सेशन। बार बार बुलाएंगे, आप ये चिंता मत करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर किसले। तो काफी एंजॉय किया सेशन, और हिंदी में बहुत इसका डिमांड था, पॉपुलर डिमांड। तो अभी हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बेनिफिशियल है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।